Gurutam. Okay. Okay. So here you can see fraction can be represented in the form of a by b, and always we utilize a natural number to write down a and b. यहाँ तक clear है? Yes, sir. कोई problem यहाँ तक? नहीं, sir. Okay, that's great. Okay, so we will move to the next page. And आप एक काम करो, आप इस point को note कर लो. Representation of a fraction should be a upon b. Okay. 1 minute, sir. या और एक काम करना, आप एक नोटबुक बना लेना मैथ्स के लिए, ठीक है? और नहीं, sir, मैंने already बनाया. that's good, that's good. So should I note down the 3 upon 5 as natural Yes. numbers? Yes, yes. Okay. 3 upon 5 natural नहीं, this is a fraction. Oh, yes, sir. 3 and 5 are natural number. Okay. Written? Yes, sir. Okay, that's great. Okay, now I'm moving further. So just now I told you we can write a fraction as a upon b. ये मैंने एक fraction लिखा, right? So always remember the top one. The top one means the upper one. Upper one called as okay, I will use another pen. Give me a second. The upper one will be known as numerator. Numerator. And the lower one we called it as denominator. तो fraction जो है वो numerator by denominator के form में हम represent always करते हैं. Is it clear? Yes, sir. जैसे मैं example यहाँ पे ले लेता हूँ 12 upon 13. So this is called as numerator and this is called as denominator. कुछ नहीं है, ऊपर वाला टॉप वाला न्यूमरेटर बोला जाता है एंड डाउन वाला डिनोमिनेटर. इतना ही है. प्लीज मेक अ नोट. और इसमें कुछ सोचना ही नहीं है. Okay, sir. मेक अ नोट ऑफ इट. Yes, sir. Done. ओके. अब सबसे यहाँ तक तो मैंने आप लोग को आपको पढ़ाया कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं. फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं. But in reality, what is the fraction? I have to tell you. Okay. Okay. Now just give me a second. Okay. What is this? Or a rectangle. A rectangle. Good. 1, 2. In how many parts I have divided? So 4. Total I divided in 4, right? Yes, sir. Okay. Out of 4, in how many parts I have shaded here? 2. 2 parts I have shaded. So if anybody asks me the shaded part, so we can say 2 upon 4. What we can say? 2 part is इसका मतलब ये हो गया 2 part is shaded out of 4 parts, right? If I will go further, I will shed in this. So अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? If I write on the statement 1 by 4, so 1 part is shaded yellow. 1 part is shaded yellow out of 4 parts. मतलब टोटल हमारे पास कितने थे? 4 parts थे. 4 में से मैंने कितने parts येलो किए? 1 part. So we are saying 1 part is shaded yellow.
सो जो पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और होल पार्ट, टोटल पार्ट जितने में हमने डिवाइड किया है हम उसे कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। Denominator. So do you clear about the fraction meaning? What is the fraction meaning actually? Yes, Fraction sir. meaning represent out of total how many parts you have. ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक बस छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सपोज इट आपके पास एक पिज्जा था। क्या था आपके पास? Pizza. पिज्जा। पिज्जा में आप के पास, जस्ट गिव मी सेकंड, 4 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 4 Four. पार्ट्स। अब आप इसमें से आपने इतना पार्ट खा लिया। सो व्हाट जी. यू से हाउ मेनी पार्ट, हाउ मच फ्रैक्शन यू हैव ईटन? सो Sir, 1/4. 1/4 you can say it, right? So it's simple, जितना हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 पार्ट मींस ये तो खा लिया। टोटल कितने थे? 4, right? 4. Yes, So sir. we can represent the fraction in this way. तो actual fraction का जो meaning है वो ये कहता है कि out of total how much part you have in your hand, or how much part you are doing. Sir. Yes, tell me. No, sir. I just want to note that point down, sir. Oh, okay. Yeah, make a note of it. Okay. Yes, sir. Done? Okay, that's fine. Just give me a second. मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ. Hold a second. Now we will do types of fraction. What we will do? Types of fraction. Types of that. So we have understand how to represent the fraction, and fraction की actual meaning क्या होती है वो हम समझ चुके हैं. Now we are going to learn about types of fraction. I think this is okay. Image is not visible. Oh, sorry. Give me a second. I will Yes, take sir. another image that would be better for you. Hold a second. Take it. Okay, now you can see here types of fraction. So first is what? First I have taken a proper fraction. Okay, so what do you mean? What do you mean by proper fraction? You can see. Can you read this, please? Yes, sir. The numerator is less than the denominator. तो आप ये देखो, top one is the numerator part is less than the, तो देखो हम न्यूमरेटर को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कैसे करते हैं. न्यूमरेटर को n बोलेंगे और डिनोमिनेटर को d बोलेंगे. कोई प्रॉब्लम है इसमें? n for numerator, d for denominator. So d is bigger, n is smaller, so this is known as proper fraction. Do you clear? Yes, sir. सेकंड में क्या हो रहा है बताओ? जस्ट रिवर्स. न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जा रहा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, राइट? एंड व्हाट अबाउट द मिक्स्ड वन? सो मिक्स्ड में क्या है? हमारे पास एक होल नंबर है. हमारे पास क्या है? होल प्लस एक फ्रैक्शन है. सो दैट वी कॉल व्हाट? होल नंबर प्लस फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर कहा जाता है. इज दैट क्लियर विद यू? अब बात आती है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि ये तो मैंने थ्योरेटिकल समझाया. प्रैक्टिकली इफ यू विल सी, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. Practically if you will see that 1/2 they have said, that means proper में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है, राइट? सो यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करके दिखाया भी गया है. सो ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं इसमें? 4 बॉक्सेस हैं. Out of 1 is the pink, so that's why what they have written 1/4. तो रिप्रेजेंटेशन देखो, फ्रैक्शन पढ़ना सही है
but representation of fraction is also important to understand. Okay, Yes, so sir. यहाँ पर क्या है, ये 2/3 3. और यहाँ पर क्या है, 7 boxes are pink out of 10, 10. so that's why they have written here. तो ये वाला तो आसान होता है, हर कोई समझ जाता कि चलो जी. ठीक है, 1 box पिंक था आउट ऑफ 4, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, राइट। जी. जी. अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 5/3, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, राइट, यस सर. और डिनोमिनेटर छोटा है। छोटा है. अब देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल, ओहो, एक सेकंड रुको, यस सर. या आई एम टेकिंग अ पिक्चर। हाँ, ये वाला चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखो तो यहाँ पर लिखा है 7/4, मतलब हमारा ये न्यूमरेटर इज बिगर देन Bigger. डिनोमिनेटर। चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ लिया, दैट सब कुछ ठीक है, हमें जी. उसमें नहीं जाना। हमें जाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये 7/4 का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन। अभी अगर मैं Okay. बोलूं कि 1/4 समझ में आता है, 2/4 भी समझ आता है, 3/4 भी समझ आता है, लेकिन ये 7/4 क्या हुआ। तो 7/4 का मीनिंग ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट्स में, कैन यू सी दैट। यस सर. अब 7/4 का मतलब क्या होगा कि ऐसे कितने पार्ट है हमारे पास, तो इस तरह के हमारे पास टोटल 7, तो 4 तो ये हो गए, तो हमें 4 का एक होल बनाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 पार्ट मींस एक वन होल थिंग इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, राइट। यस सर. तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे कि 7/4 का मीनिंग हो गया कि एक होल तो मिलेगा मिलेगा, और जी. दूसरे होल में देखो, एक होल मिल गया मतलब 7 में से 4 खत्म हो गए, अब कितना बच गया हमारे पास, सर 7. नहीं 7 में I से mean 4 चला 3 गया, sir. सो 3, सो 3. 3 आउट ऑफ 4 बच गया, मतलब 3 पार्ट यहाँ ये शामिल है. होंगे इसमें, राइट। Yes आई एम sir. टेकिंग वन मोर एग्जांपल, सपोज आई हैव रिटन, take an example, I have written 5/2, मैंने क्या ले लिया, 5/2। 5/2. अब सिंपल सी बात यहाँ ध्यान से आप देखो, 5/2 मतलब ए वन होल, गिव मी सेकंड, Yes वन होल हैज हाउ मेनी पार्ट्स, वन होल कहने का sir. मतलब एक पूरा पार्ट कितने में होगा, 2 पार्ट में Two. होगा। कैसे मालूम चला, तो यहाँ पर 2 लिखा है, दो इसका होल. मतलब कि एक पार्ट में 2 पार्ट करने हैं। जी. ओके, अब बोलता है 5/2, 5/2 कैसे होगा, अब देखो ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, तो एक होल कंप्लीट हो गया, जी. राइट। अब मेरे को 5 करना है, 5 करने का मतलब यहाँ पे कि मुझे ऐसे ये एक और बनाना पड़ेगा। सर 1 मिनट सर, मुझे एक डाउट है. यस बताइए। जैसे आपने एक पहले होल में आपने वो पहला स्क्वायर आपने डिवाइड किया 2 पार्ट से, राइट, करेक्ट। तो आपने 2 पार्ट शेडेड किया, हाँ बिल्कुल। तो सर वो 2 पार्ट होगा या नहीं सिर्फ एक होल नहीं में? नहीं, एक होल में 2 पार्ट हो गए, एक होल में कितने पार्ट हो गए, दो. होल कहने का मतलब कि एक पूरा था, उस पूरे में मैंने कितने पार्ट बनाए, 2। 2 पार्ट. अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी मैंने कितने बनाए, 2. टोटल 2 कितने हो पार्ट. गए, 4 खत्म। 4. यहाँ कितने पार्ट मैंने बनाए, एक छः. पार्ट। क्यों एक बनाया, एक खाली छोड़ दिया, क्यों, अब काउंट करो शेडेड क्योंकि कितने हैं, 5. 1 2 3 4 5, 5 शेडेड है मेरे पास, राइट। जी 5/2 सर. कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड दूं, अब मैं इसको डिवाइड दूं, सो कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज लाइक दिस, आपने पढ़ा होगा पहले भी, राइट, मतलब यस सर. 2 होल एंड अ हाफ, 2 होल एंड अ हाफ। तो ये देखो, ये 2 होल मिल गए मुझे और इसका जी. हाफ मिल गया मुझे, राइट। जी. सो दिस Yes इज द sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Fraction. क्लियर है।
Yes, sir. एक मैं बहुत शॉर्टकट चीज बता देता हूँ जो कि कन्वर्जन आपको आएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पर ये पढ़ा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, राइट? Yes, sir. ओके, अभी एक पॉइंट आता है इसके बाद एक टॉपिक है इसमें। ओके, आर यू क्लियर विद व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज मिक्स्ड? Yes, sir. ओके, चलो नोट कर लिया इसमें कि प्रॉपर Uh, क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है एंड मिक्स्ड क्या होता है? 1 minute, sir. I'll प्लीज just मेक अ नोट। write it. और जो मैंने ये शॉर्टकट राइट में लिखा है वो जरूर लिख लेना, वो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे जी. सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक काम करो, आप लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन, लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन टॉपिक ऐसे बन लिखो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख रखा है यहाँ पे, राइट? जी. तो आप लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन n लेस देन b, एग्जाम्पल 1/2। क्लियर है? Yes, sir. प्रॉपर फ्रैक्शन किसको, अच्छा आपके पास पीडीएफ रहेगी ही रिवाइज करने के लिए, वीडियो रहेगा रिवाइज के, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट? Yes, sir. उसके बाद सेकंड में लिखो आप इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जहां स्पेलिंग समझना है पूछ लेना आप। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। Denominator. एज एग्जाम्पल 5/2 और 5/3 आप लिख लो। तीसरा है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में होल प्लस फ्रैक्शन, होल प्लस फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में लिखो 3 1/5, तो 3 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है होल एंड 1/5 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन। Fraction. क्लियर है? Yes, sir. ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में मिक्स वेज सब्जी बनती है, राइट? जी. मिक्स वेज सब्जी बनती है ना खाने में। जी, sir. यस, तो मिक्स वेज सब्जी बनती है तो उसमें क्या है, सारी सब्जियां पड़ जाती है, राइट? जो भी घर में अवेलेबल है वो हम डाल सकते हैं। सो दैट सेम थिंग, होल एंड फ्रैक्शन को हमने ऐड कर दिया तो मिक्स हो गया। लिख लिया, नोट हो गया? Yes, sir. ओके, सो आई एम मूविंग, शैल आई मूव? Yes, sir. ओके, चलो। अब इसके बाद ये सारी चीजें यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? No, sir. ओके, अब टॉपिक है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, दैट इज improper to mixed fraction, improper to Mixed fraction. mixed fraction। ओके, और इसी का उल्टा हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो चलो मैं दोनों ही चीज सिखाऊंगा। पहले मैं इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन करना सिखाता हूँ, ठीक है? Okay. सो Yes, sir. मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो देखो, क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं। कैन यू सी दिस क्वेश्चन हियर? Yes, sir. I can see it. ओके, सो क्वेश्चंस मतलब टॉपिक है हमारा इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed अभी हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बोलेगा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? Yes, sir. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें कैसा दिखता है, बताओ कैसा दिखता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? Sir, one whole and then fraction. फ्रैक्शन, राइट। ये देखो, ये कौन सा नंबर है, which kind of fraction it is? 30. Sir, it's improper, sir. क्यों इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। राइट, अब चलो वर्कआउट करते हैं फास्ट। जी। आप अभी मत लिखना, मैं पूरा लिख लूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा फिर लिखना, ठीक है? जी। सो आई नीड टू कन्वर्ट, तो ये मेरा हो गया इम्प्रॉपर। क्या हो गया मेरा ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे अभी मैं रफ करके समझाता हूँ। देखो मैंने लिख भी दिया है, लेफ्ट में हमारा इम्प्रॉपर है
और इक्वल टू साइन के बाद हम उसको राइट में मिक्स लिखेंगे। हमने इक्वल टू साइन जी। क्यों दिया? क्योंकि दोनों इक्वल ही कहलाते हैं, राइट? यस तो सर। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर। चलो, आपको डिवीजन करना आता है? जी सर। सो बताओ, टॉप में हेड पर मुझे क्या नंबर लेना चाहिए? बाय विच नंबर आई शुड डिवाइड इट? सर 7। हाँ, 7 जा 49 हो जाएगा, नहीं ले सकते? जी सर। 7 5 जा 7 5। 7 5 जा लिया, सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे रिमाइंडर कितना आएगा? सर 3। 3 रिमाइंडर आ गया, राइट? यस अब सर। देखो, जो आपने ऊपर टॉप में लिखा, ऊपर आपने टॉप में जो लिखा, that becomes a whole. That becomes what? A whole. और जो आपके पास रिमाइंडर रह गया, सो रिमाइंडर 3 पार्ट आउट ऑफ 7 रह गया। तो आपने इसको कितना लिखना है? आपने इसको 5 होल 3 पार्ट बच गया किसमें? 7 में से। 7। तो यू हैव टू राइट इट डाउन हियर, 5 3/7। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब आप एक काम करो, आप इसको नोट करो और राइट हैंड साइड में रफ लिखकर इसको नोट करो कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। तो ये हो गया होल, एंड द रेड पार्ट विच आई हैव डन हियर, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में याद रहेगा कि जो रिमाइंडर आता है वो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नोट कीजिए जल्दी से। ये सब पहले से आता था या फिर क्या, मतलब कंफ्यूजन था इन सब में? हाँ जी सर, कुछ कंफ्यूजन था पहले। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हो रहा है? देखो, आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे वहीं स्टॉप करके वहीं पर सवाल करना कि मुझे ये आप दोबारा बताओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके? बट कंफ्यूजन नहीं रखना है कहीं भी। ओके सर। या Sir, या I have one question, sir. टेल मी। Sir, you wrote 3, right? As in the rough work, you wrote 3. Sir, what is the multiplication sign for? नहीं, मल्टीप्लीकेशन साइन मतलब ये 3 3, देखो एक सेकंड, एक मिनट। मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है 3, देखो ये 8 में से 5 गया, 3 बचा, राइट? और ये 3 3 0, तो 0 मतलब कैंसल। मल्टीप्लीकेशन नहीं, मैं उसको रब कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं कैंसल मैंने किया, मतलब कि वो कट गया। जी। तो आपके लिए अगर कंफ्यूजन है, सो आई कैन राइट डाउन हियर 0, ठीक है? यस सर। हम कैंसल कर देते ना, कि जो 0 हो जाते तो कैंसल कर देते हैं, दैट वाज। जी जी सर। डन इज इट? यस सर। ओके, चलो अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। तो सेकंड में ऑलरेडी ये इम्प्रॉपर दे रखा है, राइट? यस सर। So can you do it in your rough? Can you tell me what shall I write down? Yes sir. Sir, 15 divided by 47. No, 47 divided by 15. But sir, aren't we supposed to take the denominator? देखो ये ऐसे रहेगा ना। जी। So 15, how many times of 15 will give you 47? Sir, nothing, right sir? टेबल चेक करो तो ठीक है ना। डिवीजन में अगर नहीं आया तो हम टेबल चेक करेंगे, राइट? जी जी। तो टेबल चेक करो 15 का। 15 1 जा 15, 15 2 जा 15 to the 30, 30, 15 3 जा 45. and 15 4 जा, Sir, 60. तो 60 ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 नहीं लेंगे, तो 15 3 जा हम लेंगे यहाँ पे, राइट?
Yes, So sir. this becomes 45. I will subtract, so it will give me how much? 2. 2, And here 0. So 0. 3 becomes the whole. So we can write it on this one as 3 becomes the whole and 2 is the remainder. So 2 over 15. 15. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 whole हो गया 2 upon 15 like this. Okay, sir. Can you write down? Yes, sir. Okay. Sir, one doubt, sir. Yes, tell me. Sir, is it necessary always to use the denominator as the हाँ, yes, yes. क्योंकि डिवीजन वैसे ही करते हैं ना जी हम कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम डिवीजन की जगह पे रखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसे हम डिवीजन के जगह पे रखते हैं, ठीक है? ऑलवेज चेंज नहीं करते, ये डिवीजन का रूल है. ओके Is second done? 1 minute, sir. Okay. अच्छा, आपके बुक के ऊपर में जो आपके पास बुक है उसका नाम क्या है लिखा हुआ? RS अग्रवाल है? नहीं सर, इधर लिखा हुआ है अल्का टूली राजेश हसीजा. क्या मुझे आप उस बुक के ऊपर सबसे ऊपर कवर पेज का पिक्चर भेज सकते हैं? जी सर. यस, ताकि मुझे होमवर्क देने में आसानी हो. अच्छा ठीक है. यस. यस सर, द सेकंड वन इज डन सर. डन. चलो ठीक है, आप मुझे पिक्चर भेज देना. मैं ओके. थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे मुझे? 1 मिनट सर. या यस सर. यस. चलो, 2 क्वेश्चंस तो मैंने आपकी हेल्प की 2 क्वेश्चंस में. इन द थर्ड क्वेश्चन कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ राइट नाउ? यस सर. जस्ट डिवाइड देना, सिंपल डिवीजन. अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताना आप मुझे. जी सर. Sir, I got the answer as How much? 11 13 by 60. एक second. Give me a moment. Yes, sir. $11 and then 13 by 16. good. 11, 13 by 16. That is the right answer here. Okay. 11, 13 by 16. Do you clear how to do this kind of things? Yes, sir. कोई डाउट रह गया हो इसमें, कुछ पूछना है? No, sir. No? Okay, चलो. तो अभी तक हमने 3 types fraction देखे हैं और हम एक conversion देख रहे हैं, right? जी. Types of fractions और भी हैं, don't worry. ऐसा नहीं मत समझना कि खत्म हो गया है. I will come one by one. एक पहले सिखा लूं,
फिर मैं दूसरी फ्रैक्शंस दूसरे टाइप्स आपको सिखाऊंगा, ओके, ताकि Okay, आपके sir. साथ कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो अभी हमने देखो सिंपल सी चीज है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बना लिया, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। Mixed. पहले इम्प्रॉपर हमें सभी में इम्प्रॉपर दिया था, हमने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर Yeah. लिया है। चलो जी. अब दूसरा टॉपिक जो है सेम, रिवर्स। रिवर्स मतलब मिक्स्ड Mixed. फ्रैक्शन रहेगा Improper. और उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, सो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहां से लेता हूं जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, ओके। Okay, sir. The second question, can you see the second question here? Yes, sir. 47 by 15 is the your improper and the mixed fraction is what? 3 2 by 15. तो ये ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो इसको रिवर्स करेंगे। अगर मिक्स्ड से हम वापस इम्प्रॉपर जाएंगे तो यही आंसर आना चाहिए, सेम, राइट? Yes, sir. चलो करके देखते हैं। तो मैं सेकंड ले रहा हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पे। सो द थिंग इज 3 2/15, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है ये? Mixed fraction. इसको हमें देखो, मैं इक्वल टू साइन देके इम्प्रॉपर, Yeah. so it's a 3 2 by 15, 3 2/15. Can you see the board here? Yes, sir. Okay. Now, how to solve this kind of things, mixed fraction to improper fraction? Simple. It's simple as here, you can see, we will multiply this. So we have to multiply what? 3 times 15. That means the whole number and the denominator part should be multiplied. So it becomes how much? It becomes 40. Yes, sir. And then I will add the numerator part. So it becomes how much? 47. So write it down, 47. And then look at what is the denominator. Denominator was 15. So write down as just 15. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. So we got the same answer, right? Yes, sir. So 47 by 5. again, one more question I will take. 38 by 7 I'm taking. Okay. So Yes, sir. I will just show you by doing this stuff. Second part. So we have, you can see 3 by 7 we have written. Okay. Okay. So I'm just writing 3/7. Can you help me how to do? How to convert? Yes, sir. Tell me. So 7 into 5. Good. 7 into That- 5. Yes, so that will be 35 That would be 35. Good. And then plus? plus Good. 3. 38 by 7. Good. So this becomes 38 by 7. So through this way, we can do what? We can convert our, that means mixed fraction into improper fractions, right? Yes, sir. So I have few questions for you here. So you can see this one. Can you see Yeah. this? Yes, sir. Yes. Okay. So in this, can I try the second number by yourself? Yes, sir. So 7 into 4. Mm-hmm. That becomes Then 28 yes, sir. plus 5. Plus 5. Mhm. So it will be 32 by 7. 32, no, 33 it will become. Oh, sorry. Yes. Good. So it is going to be 33 by 7. Go for the third number. Yes, sir. 13 into 7. Mm-hmm. So that will become so will Multiply. it be 91? It will be, yes, you're right. Yeah. 91 it will So become, then plus plus 9. 9. So it becomes how much? 100 by 13. So I can write 100 by 30. 13. Okay. So now you have Yes. learned what? You have learned a few things, that what is proper, what is improper, what is mixed fraction, and how to convert the improper to mixed and mixed to improper fraction. This much you have learned, right? Yes, Okay. sir. So you can do what? Okay.
So these things you have learned it. Okay. Now, I will move little bit more. Okay. I'm taking one very quickly. I will take it this part. Okay. We have another parts of fractions. So just give me a second. Yeah. Can you see this? Yes, sir. Equivalent fraction. What do you mean by equivalent fraction? Equivalent what? So, It says it's equal. Equivalent says yes, what? sir. It's equal, right? Equal. Yes, sir. So equal means what? I will let you know right now. Suppose I have written down here 1 over 2. What I have written? 1/2. 1 over 2. If you multiply both numerator and denominator, so by 2 again, it gives you how much? Tell me. Or it will be 2 so over 2 4? by 2/4. Okay. Yes, Sir, but right. don't we have to keep the 2 as it is What 2 as it is? in the denominator? No, because it will multiply. Can you see that? Yes, sir. We are multiplying by the same number. Can you see here? Yes, sir. The numerator and denominator, we are multiplying by same number. Same number. It means if we have done by same number means it is 1. 2 by 2 will be 1, right? Yes, sir. तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू को चेंज, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है? नहीं सर. तो हमने बेसिकली क्या किया कि हमने इनडायरेक्टली ये बोला कि हमने मल्टीप्लाई तो जी कर दिया 1 से, लेकिन हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? 2 by 2, राइट? और 2 by 2 का ओरिजिनल मीनिंग होता है 1. तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इन रियलिटी हमने नंबर तो बदल दिया. देखो यहाँ पे जी 2/4 हो गया. तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सर one thing sir. Yeah. So sir, equivalent fraction means if like if we are multiplying one fraction from another fraction and the second fraction, if it's equal, that means it's an equivalent fraction. Yes. मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जो आप समझ में आएगा. सपोज इट मैंने यहाँ एक नंबर लिया 3/10. क्या नंबर लिया मैंने? 3/10. इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/4 से. किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 4/4. एक बात याद रखना, जो मल्टीप्लाइंग नंबर है वो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम. क्यों? क्योंकि ये 1 होता है और हम चाहते हैं कि हम मल्टीप्लाई इन रियलिटी 1 से कर रहे हैं. लिखते हैं हम कुछ और है, कहते हैं हम कुछ और है. यहाँ देखो ध्यान से, हम लिख रहे हैं 4/4, राइट? लेकिन हम रियलिटी क्या है? 4/4 इज इक्वल टू 1. हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर नहीं चेंज होगा, लेकिन इन रियलिटी हम लिखकर यहाँ पर और आप बाद में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? मल्टीप्लाई करो 12 over 40. So we can also write 3/10 is equal to 12 over 40. तो आज मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया है. मल्टीप्लाई डिवीजन में भी करते हैं. डिवीजन में कैसे होगा? डिवीजन कब करते हैं? जब हम बड़े से छोटे फ्रैक्शंस में जाते हैं. ठीक है? Right now I do not have the time because I have another class. Okay. So in the next class by Tuesday 11 o'clock I will let you know about all these things. Okay. Sure. And the another part you can inform your mother also. For the timing which the power was went off. Okay. I will deduct the charges. So उसका कोई charge नहीं हुआ. So not to worry that we will charge for the whole hour. नहीं. जो पार्ट पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है, like 15 minutes or 20 minutes, so we'll हम waive off कर देते हैं उसको. ठीक है? अगर कुछ confusion होगा तो आप मम्मी को बोलेंगे, वो मुझसे बात कर लेंगे. ठीक है? जी सर. तो ऐसा नहीं है कि
क्लासेस नहीं भी हुई फिर भी वी आर चार्जिंग दैट, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, Yes, sir. Yeah. Okay, sir. फाइन. तो आपका होमवर्क Yes, sir. कर लो, प्लीज मेक अ होमवर्क नोट. आप अपने बुक Yeah. से, बुक में देखना. आज तो मुझे पता नहीं वो बुक में क्या एक्सरसाइज नंबर होगा, आप मुझे एक बार भेज देना. चैप्टर 2 के फोटोज भेज देना आप मुझे, ठीक है? कैन यू डू दैट? सर किससे चैप्टर 2? आपके बुक का चैप्टर 2 है अच्छा, फ्रैक्शन, जी सर. उसका फोटो खींचना, उसको पीडीएफ कन्वर्ट करना एंड सेंड टू मी. ओके सर. ओके. चैप्टर 2 का क्लियर है? ओके. यस सर. हाँ, उसको आप स्कैन करके भेज देना. मेरे पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह है, बट आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स फर्स्ट. आपके बुक से भी जाऊंगा, ठीक है? ओके फाइन. तो आप वो भेज देना एंड देन आई विल लेट यू नो द होमवर्क, व्हाट आर द होमवर्क्स फॉर यू. क्लियर? यस. Okay. Thank So you we'll so meet on much, sir. we'll meet on Tuesday. Okay. Tuesday. Yes, sir. Yeah. Thank you, Okay. sir. Bye. Take care. Bye, sir. Bye. Thank you. Stay connected.